जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तेलंगाना బోరబండ అవుట్ పోస్ట్ 35 దినాల్లో ఉండే దాని తీసుకుపోయి 500 గజాలు పెట్టాం, 22 పోలీస్ సిబ్బందులు పెట్టాం, అద్భుతమైన రౌడీ చేసుకున్నాం. ఎక్కడ కూడా రౌడీ చూడడం, ఎక్కడికైనా మన పోలీస్ శాఖ అద్భుతంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు మార్పు తీసుకొచ్చి అద్భుతమైన మార్పు తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు చూడొచ్చు అద్భుతంగా పోలీస్ సిస్టమ్ బాగా వాడ్చాం, చాలా అద్భుతమైన నాయకత్వం తీసుకొచ్చాం. కాబట్టి లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ ఉందా లేదా అద్భుతంగా మనం పనిచేసినాం. గతంలో లేకపోతే బండి కాడ నిలబడి తీసుకొని రావటం, బెదిరియటం, నిలబడి రావటం, గుంజుకోవటం ఉందా ఉందా లేదా ఉందా లేదా చెప్పాలి, ఉందా లేదా ఉందా లేదా లేదంటే మార్పు తీసుకొస్తాం. కేసీఆర్ పంపిన సిపాయిగా మీ ఇంటికి సేవకుడుగా, మీ ఇంటి బిడ్డగా పూర్తిగా సేవ చేశారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఏం చేయాలి, ఓటు వేయాలి, అందరు చెప్పి ఏపీఆర్ కారు సర్కారు, కారు సర్కారు కేసీఆర్, కారు సర్కారు కేసీఆర్. కాబట్టి అందరూ కోరుకునేది ఏంటంటే 1వ తారీఖు 2వ నంబర్ పై కారు గుర్తు కొట్టేసి భారీ ప్రయాణం మరొకసారి ఆశలు గెలిపిస్తే మన హాకర్ తమ్ముళ్ళకు మళ్ళా కర్నూలుకి కవచకొండ ఏ విధంగానో మీకు అట్లా కవచకొండ లేకుండా కాపాడుకుంటా చేస్తున్నారు. జై హింద్, జై తెలంగాణ. శక్తి నిలవాలి, రోడ్డు పైన నిలబడి 100 మంది 1000 మంది రోజు చూస్తాం. పొల్యూషన్ మన ముక్కులో తీసుకొని కూడా ప్రజలకు మనం తక్కువ ధరతో మన పండ్లు కూరగాయలు అమ్ముతూ ఉంటాం. మన ప్రాణాలు మన తలచేతిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకు సేవలు అందిస్తాం. కాబట్టి మనం శక్తివంతులకు శక్తి తీయాలి. नेशनल हाकर फेडरेशन की जानिब से जो हमारे कन्वीनर अली जनाब बाबा फसीउद्दीन साहब, जिसके लिए हम फख्र से कह सकते हैं कि शहर को बाहर से डिप्टी में नहीं गोराबंदा नहीं, पुराना शहर, नया शहर, सिकंदराबाद, हैदराबाद, हाईटेक सिटी, हर जगह के ऊपर बाबा फसीउद्दीन साहब का बड़ा काम है। अली हाकर यहाँ के नहीं, पूरे हैदराबाद के स्ट्रीट वेंडर को सेव करना है। तो जरूर है कि बाबा फसीउद्दीन साहब को जिताना होगा और आपके बाद सिर्फ कार को लाना है, बाबा फसीउद्दीन साहब को जिताना है। जिताने के बाद इस शहर की तरक्की को दोगुनी तरक्की करना है। इन उनके बातों में मत जाइए, बाबा फसीउद्दीन साहब को लाइए, कार के निशान को। केसीआर साहब खास तौर पे बोल रहे हैं कि बाबा फसीउद्दीन अगले देव जीतने से जीते थे, अब के डबल देव भी क्या पब्लिक। मैं बोला साहब सामने वाले के किसी की जमानत में बस थी और खास तौर पे बोले हाकर भाई हमारा फख्र है। मैं समझता हूँ हमारे काम में हमारे हर लोग रात की मेहनत कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा फसीउद्दीन साहब को जिताने के लिए। और खास तौर पे आज हैदराबाद के सदर के लिए भी ऐलान कर रहे हैं। हमारे सदर खास तौर पे आज यहाँ पर हैदराबाद के सदर की हैसियत से खास तौर पे ऐलान हुआ है। मैं चाहूंगा कि बाबा फसीउद्दीन साहब उनको हाथ मिलाएं। ये हमारे नए सदर हैदराबाद के लिए जो गोराबंडे में रहेगा आपकी खिदमत करेगा और रात दिन आकर के लिए अच्छे से अच्छी सहूलत दिलाएगा। जय तेलंगाना, पहली के दिन कुछ नहीं कार हैदराबाद पूरे आपकी
नेशनल हाकर फेडरेशन की तरफ से टीआरएस के निशान कार के निशान को टीआरएस कैडेट्स को पूरा मदद देने के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं। हम मेरे तरफ से टीआरएस पार्टी की जाने की तरफ से नेशनल हाकर फेडरेशन को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आपकी पूरी मदद हमको देने के लिए फिर से एक बार इनायत अली बाकरी साहब को, कामरेड को और यहाँ हाकर भाइयों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मतलब धन्यवाद नेशनल हाकर फेडरेशन तरफुना మీరందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతు ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కాదు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కేటీఆర్ గారు కూడా అలీబాబు గారు చెప్పారు, మొత్తం నేషనల్ హాకీ ఫెడరేషన్ తరఫున హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగే బందీ ఆలస్యకు పూర్తి మద్దతు ఇస్తామన్నందుకు మీ నేషనల్ హాకీ ఫెడరేషన్ కూడా అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా అలీబాబు గారు కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చేసుకున్నాను. మీరు చాలా కష్టపడి రోజుకు వందల వేల మంది కలుస్తారు, కలిసి చెప్పాలి కారు కొట్టేసి హైదరాబాద్ నగరం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అదే వేరే పార్టీ వస్తే హైదరాబాద్ నగరం మత కలహాలు విదేశాలు రెచ్చగొడతారు. కాబట్టి ప్రశాంతమైన హైదరాబాద్ కావాలా, మత కలహాలతో ఉన్న నగరం హైదరాబాద్ నగరం కావాలా, ఏ నగరం కావాలి, ప్రశాంతమైన హైదరాబాద్ నగరం కావాలి. అద్భుతంగా డెవలప్ అయిన మిత్రులు, అద్భుతంగా అభివృద్ధి చెందిన నగరం హైదరాబాద్ నగరం. అదేవిధంగా యువ నాయకుడు కేటీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అద్భుతంగా డెవలప్ అయింది. కాబట్టి మీ అందరూ కూడా కారుపై ఓటేసి గెలిపేయడానికి హైదరాబాద్ లో నాయకులు చెప్పాల్సి కోరుకుంటూ సేవ చేసుకుంటాం. జై తెలంగాణ. आपसे मेरी गुजारिश है, आप रोड के ऊपर रहते कई आने वाले जाने वाले सबको बोलना कि भाई कार के निशान को वोट देना, भारी से बाबा भाई को जिताना बोल के आप जिम्मेदारी लेके बोलना. ये जिम्मेदारी आपके सर पे लेना. लोग आगे आके अपना माहौल अमन बाकी है, अमन बरकरार रहना, बोरा बड़ा मशहरी से अमन बरकरार रहना. तो अपने लोग सब मिलके हाकर पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाकर भाई पूरे मिलके सिर्फ कार के निशान के लिए आप बोलना, कार के निशान को डालना, बाबा भाई को डालना. ये बोरा बंडा का चौरस्ता एक वक्त में कैसा था, ये बोरा बंडा का चौरस्ता हिलने के लिए जगह नहीं थी. इस बोरा बंडा चौरस्ते में गाड़ी भाड़ती नहीं थी, बस पड़ता रहता. हाकर को बहुत तकलीफ होती थी, बस वालों को बहुत तकलीफ होती थी, ऑटो वालों को बहुत तकलीफ होती थी. मगर इस 5 साल में एक इनकलाब हमने लाया. तो आपसे मेरी बात गुजारिश है, मेरे हाकर भाइयों से सब मिलकर 1 तारीख के दिन 2 नंबर कार के निशान को वोट देकर मुझे भाई से बड़े अक्सर से जिताएं. और आपके पास आने जाने वाले हर कोई गिराव को बोलना 2 नंबर कार का निशान, 2 नंबर कार के निशान वोट डालने के लिए बोलना. यहाँ पर कार के निशान वोट डाल के आप क्या करते हैं, तो लोग ऐसा बोलते वोट खराब हो जाता. क्या करना पड़ता है, वोट ऐसा फोल्ड करना, ऐसे ऐसा फोल्ड करना करने का वोट खराब नहीं होता. ये 5 मिनट मेरे पास रख लीजिए, आपके पास रख के आप खुद एक टीआरएस के कारकुन बन के काम का आप खुद कमर बस कस फिर से एक बार एक कार पार्टनर बनाने के लिए पूरे कमर कस ले. ये सीआर के एक सिपाही को फिर से फिर से बनाने के लिए कमर कस ले. मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते. मैं आज जो है सो हमारे हाली जनाब इनायत अली बाकरी साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट है, मैं उनके साथ करीब 2012-13 में जंतर मंतर पे गया, धरने लगाया, हाकरों के लिए वक्त करा, 2 साल 3 साल मेहनत करा. उसके बाद में कुछ कारोबार के मसरूफियात से कम आना जाना कम हुआ था, मगर आज उन्होंने मेरे पुराने वर्क को देख के आज जो है सो मेरे को ग्रेटर हैदराबाद का नेशनल हाकर फेडरेशन का सदर दिए. मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और जो है सो हमारे अली जनाब मोहम्मद बाबा फसीउद्दीन साहब जो हाकरों के उन्होंने भी जैसे कन्वेनर थे, उनके बीच आज शहर के डिप्टी मेयर रह चुके 5 साल, इंशाल्लाह आगे भी उन्होंने ही रहेंगे. उनके बीच उनके हाथ पे जैसो मेरी गुलपोशी करे. मैं तहे दिल से हमारे इनायत अली बाकरी साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ. और हमारे यहाँ के हाकर भाई वेंकट अन्ना, हमारे शंकर भाई, ज़मीर भाई, मकबूल भाई, जितने भी हमारे हाकरा हैं, मैं भी उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे आज ये प्रोग्राम अरेंज करे. तहे दिल से मैं उनको शुक्रिया करता हूँ. और हमारे बोरा बंडे की आवाम से मैं एक गुजारिश है मेरी कि जो है सो 1 तारीख के दिन 2 नंबर पे जो है सो अपना कीमती वोट जो है सो डेवलपमेंट जो नंबर 1 डेवलपमेंट बाबा फसीउद्दीन साहब 5 साल जो है सो बगैर 2 से 3 दिन भी छुट्टी नहीं लिए कभी, पूरा 5 साल जो है सो आवाम के लिए वक्त दिए. 100 करोड़ रुपए जो है सो आप 100 करोड़ रुपए मामूली बात नहीं है. आपको जो है सो केसीआर साहब इतना बड़ा अहदा दिए, केटीआर साहब जो है सो IT मिनिस्टर साहब, म्यूनसिपल मिनिस्टर जो है सो आपको जो है सो डिप्टी मेयर दिए. वो पावर को जो है सो बराबर जो है सो इस्तेमाल करे बोरा बंडे के लिए, बोरा बंडे के आवाम के लिए. लॉकडाउन का वक्त हो तो हर जगह कुछ भी रहा तो मैं हूँ ना बोल के आने वाली एक ही शख्सियत है बोरा बंडे में, वो जो अली जनाब
मोहम्मद बाबा फसीउद्दीन साहब और मेरे हाकरों को और हमारे हैदराबाद के हाकर जहाँ जहाँ भी TRS के जो कैंडिडेट ठहरे उनको जो है सो अपना कीमती वोट कार के निशान को दीजिए। और एक बात मैं गुजारिश एक दिल से कह रहा हूँ, जितने भी हमारे हाकर भाइयाँ हैं उन लोगों को मालूम है यहाँ की हालात, बोराबंडे के शहर के हालात कैसे थे कि कोई अगर दूसरे जैसा ओल्ड सिटी से वहाँ से यहाँ कोई ऑटोआ नहीं आते थे, कारा नहीं आते थे। 5 साल में कैसा तरक्की बोराबंडा हो गया। और गंगा जमुना तहजीब अगर हिंदुस्तान में और जो है तेलंगाना में अगर देखना है तो बोराबंडे में गंगा जमुना तहजीब, मैं हमारे KCR साहब KTR साहब को कभी आप अगर गंगा जमुना तहजीब का अवार्ड दिए अगर दे रहे तो हमारे बाबा भाई को और बोराबंडे को दीजिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे नेशनल हाकर फेडरेशन के सामने मैं इतनी बात कर रहा हूँ और हमारे लेवल चैनल हबीब भाई को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी आप इंटरव्यू लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शहर हैदराबाद में आप तमाम जानते हैं कि GHMC के इलेक्शन से जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं, इसमें खुसूसन नेशनल हाकर फेडरेशन के ऑल इंडिया के सदर की हैसियत से आज हम ऐलान कर रहे हैं कि नेशनल हाकर फेडरेशन ख़ास तौर पे पूरे हिंदुस्तान की तरफ से हैदराबाद के स्ट्रीट वेंडर्स को ये अपील की गई है कि हैदराबाद का एक स्ट्रीट वेंडर हर आने वाले ग्राहक को तेलंगाना राष्ट्र समिति को जिताने की अपील करे। और तेलंगाना को हम ही वोट नहीं देंगे, हमारी फैमिली से लेकर हम आवाम से भी वोट दिलाएंगे, क्योंकि तेलंगाना राष्ट्र समिति पिछले 6 साल में जो कारकर्दगी की है उससे हम मुतमईन हैं। पहले 6 साल में हैदराबाद में अमन व अमान रहा, यहाँ पर किसी किस्म का कोई किस्म का प्रॉब्लम नहीं आया, एक दिन कर्फ्यू नहीं हुई हमारे पास। और KCR साहब हर फर्द को, हर घर को अपने घर की तरह देखा। हमें आज पूरे हिंदुस्तान में फख्र से कहना पड़ता है कि हैदराबाद के अंदर जो स्कीमें लगी वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखाई नहीं देती। आज हमारी बच्ची की शादी के लिए अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत और KT रामाराव साहब 1 लाख से ज़्यादा की रकम देते हैं। और ख़ास तौर पे वो एक ही बात नहीं है कि शहर हैदराबाद के लिए ये काम करते हैं बल्कि उससे ज़्यादा बड़ा काम जो है वो ये है कि बच्चों की तालीम, सिर्फ ST SC BC माइनॉरिटी 5 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें 65,000 मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं। जो कल तक ऑटो वाले, रिक्शे वाले, हमारे बंडी, हमारे स्ट्रीट वेंडर भाइयों के बच्चे आज अच्छी आली तालीम को लिए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे ये है कि शहर हैदराबाद में जो तरक्की की गई, पेंशन का पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी 2,000 रुपये और अपाहिज शख्स को 3,000 रुपये का वजीफ़ा नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप तमाम के तमाम आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करे और हैदराबाद के तमाम आने वाली जो सियासी जमातें हैं उनको सबक सिखाए। हमें बताइए, इख्तियार में रहने वाली TRS पार्टी क्या घबरा गई? क्योंकि आज BJP में गली से दिल्ली का लीडर यहाँ पर आकर प्रचार कर रहा है, तो ऐसे में कई लोग TRS हो चाहे कांग्रेस दूसरे पार्टी से भी BJP में जा रहे हैं और आवाम में एक लहर चल रही है BJP की। क्या ये TRS हुकूमत पर भारी हो पड़ सकती? मैं एक बात कहूँगा, चंद्रशेखर राव साहब वो शख्सियत है, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। हम 2001 से तेलंगाना के लिए जिस तरह लड़े हैं, हम 14 साल जद्दोजहद में KCR साहब ने 100 मरतबा लेके बाद 7 से 8 मरतबा अपना रिज़ाइन फेंक कर उन्होंने बता दिया कि हमारे पास सीट की कोई अहमियत नहीं है, हमारे पास ख़ास तौर पे लड़ाई की अहमियत है, मुद्दे की अहमियत है। आज GHMC इलेक्शन को मुद्दा बनाकर BJP जो हैदराबाद आई है, जब इंसान को बोलते हैं कि बड़े लोगों का कहावत है, चुमटी को जब पर फूटते हैं तो उसे मौत की निशानी कहा जाता है। इसी तरह BJP हैदराबाद आकर KCR साहब को दावत दी है कि आप आइए, दिल्ली से पूरों को भगाइए। यही कहना है, KCR साहब सिर्फ यहीं नहीं बैठेंगे, ये बल्दिया के इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि ये हैदराबाद से उठकर दिल्ली की सियासत करेंगे। बताइए, BJP का कहना ये है, गुज़िश्ता दिन दुब्बाका में जो इलेक्शन था उसमें BJP की कामयाबी एक TRS के लिए जवाब है और आने वाले बंदिया इंतखाबात में BJP यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर बनेगी और TRS नाकामयाब होगी, उनका कहना ये है। आप इस बारे में क्या खुलासा? अक्सर ये होता है कि लोग कहा करते हैं, बुजुर्ग बड़े लोग, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े ही छिछड़े। तो ख्वाब देख लेना आसान है। मैं ये कहता हूँ कि शहर हैदराबाद है, दुब्बाक की लड़ाई हमारे TRS में 10 साल एक शख्स काम 8 साल काम करके एक मरतबा इलेक्शन हार गया 800 शख्स,
जिसकी थोड़ी इमेज थी, उस शख्स को बीजेपी टिकट देकर लोगों की हमदर्दी जीतते हुए सिर्फ 1400 वोट से उसको जीत नहीं कहा जाता है। मगर आपको बता दूं, ये हैदराबाद है बाबू, ज़रा सोच समझ के कदम रखना। आपको मालूम होना चाहिए, आप एक दिल्ली का लीडर हैदराबाद की गलियों में फिरने को तैयार हो गया है। केसीआर साहब की ताकत का अंदाज़ा हो गया कि प्राइम मिनिस्टर से लेके संडल का होम मिनिस्टर से लेके बीजेपी का सदर से लेके सारे के सारे हैदराबाद में कूद रही। किससे मुकाबला? केसीआर साहब से। केसीआर साहब पूरों के मुकाबले में एक दिन घर से निकल के आवाम से बात करेंगे, वो कल का दिन है। और बताऊंगा कि कल के बाद लहर कुछ और होगी। केसीआर पे एतमाद करते हैं लोग। मेरा और एक सवाल है, कांग्रेस का इल्ज़ाम है कांग्रेस को नीलाम करे टीआरएस, और आज खुद टीआरएस नीलाम हो रही। आज बीजेपी को मजबूत करने में टीआरएस का हाथ है, क्योंकि आज टीआरएस को वो वक्त आ गया कि कई लोग टीआरएस से बीजेपी में जाने वाले। इस चीज़ का जवाब कांग्रेस को क्या? देखिए, इलेक्शन से पहले हर कोई लालची आदमी अपनी प्लेस छोड़कर चले जाता है, और एक दो आदमी जाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और